So hi guys, this is Varsha and you're joining Mastermind. So friends, this video is for all the students who are going to give their board examination, Icse class in board examination in the year 2020. So do watch this video till the end, and if you find this video helpful, then do not forget to like and do share this video with your friends. So let us begin. Guys, अगर आप आज से कैलकुलेट करो then I would not say that you have roughly 10 days left for your preparations, but you have exactly 10 days left for your preparations. Now how to make the best use of this 10 days that you have for your preparations for your board examinations, and telling you that do not get anxious. अगर आपने शुरू से अभी तक preparation अगर आपका complete नहीं भी हुआ है, then you have 10 days left in your hands, and this is the only time that you have. After that you will get only the gaps that have been provided between two different examinations, and that is meant for revision purpose. And at that particular time, if you're going to start, then it is going to be very late. So how to make the best use of this 10 days? So first of all, telling you that please do not get anxious. You get anxious and stressed because of two reasons. Either आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपका preparation भी हो गया है, लेकिन बहुत सारा कुछ पढ़ने एक साथ पढ़ने से क्या होता है, at last you are not able to retain what you have studied. You are not able to, मतलब आपको सब कुछ तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको लास्ट में कुछ याद ही नहीं रहता, because there are 10 subjects. Obviously this is normal, and you have not one subject or two subjects, but you have 10 different subjects for your preparations. और ये सारे 10 subjects पढ़ना, and you have to study each and every chapter in detail. So ये possible नहीं है. So what to do at this particular time and how to make the best use of this 10 days that you have for your preparations for your board exam. So guys, अगर आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है और अगर आपको लास्ट में कुछ याद ही नहीं है, if you are not able to retain, so what is the use of doing hard work the entire year in studying and preparing for your board examination? So telling you that अगर आपके पास अब जो 10 दिन है उसे आपको अच्छे से यूज करना है. तो कैसे यूज करना है? अगर आप अभी अपना बुक खोल के बैठो तो आपका प्रिपरेशन जो है 10 डेज के अंदर में कभी कंप्लीट नहीं होने वाला. यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. वॉट एवर यू हैव स्टडीड यू हैव टू रिवाइज दैट, एंड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव टू डू विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम. सो अगर आपको रिवाइज करना है अच्छे से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डू नॉट ओपन योर बुक. यस, यू डोंट हैव टू ओपन योर बुक. टेक आउट योर 10 ईयर्स. मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप 10 ईयर्स खोलो, और 10 ईयर्स से जितना भी क्वेश्चन है जो कि लास्ट पास्ट 10 ईयर्स में आ चुका है, आपको वहां से रिविजन स्टार्ट करना है. और अगर आप वहां से रिविजन करते हो, यू विल गेन कॉन्फिडेंस. अगर आप शुरू से वहां से रिविजन करते रहो. एंड टेलिंग यू दैट बहुत लोग ये पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या 10 ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सो टेलिंग यू दैट यस, द 10 ईयर्स क्वेश्चंस दैट यू गेट, दैट इज रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम. बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से रिपीट होते हैं 10 ईयर्स से. अब ऐसा नहीं कि 2019 में जो आया डिट टू 2020 में सेम क्वेश्चंस आए. देयर इज वेरी लेस चांसेस, देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि जो 2019 में आया वो 2020 में आए. लेकिन उससे पहले जो 2017, 2016, 2018 में जो आया, देयर आर चांसेस कि वहां से मतलब कि एक ही क्वेश्चन पेपर से सारा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ 2016 से एक दो क्वेश्चन आ गया, कोई 2015 से आ गया, कोई 2018 से आ गया. सो इट डिपेंड्स, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम देयर. ऐसा नहीं है कि वहां से कुछ क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता. इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर योर आईसीएसई क्लास इन बोर्ड एग्जामिनेशन, टेलिंग यू दैट जो कि 10 ईयर्स है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, और वहां से क्वेश्चंस रिपीट होता है. I would not say that for all the subjects it is repeated. For subjects like mathematics and all, questions तो आपको exactly नहीं मिलेगा same, but the pattern is going to be same. The type of the questions that you will get will be same, but exactly for mathematics you will not get the same questions. If you talk about your English language, तो English language में भी आपको same questions तो मिलने वाला नहीं है, because grammar it depends on you, it depends on your vocabulary, and you cannot get the same questions because there is nothing to mug up. It is on your understanding basis, and essay and all, the topics and all, that is not going to be repeated. That depends on you, how you are going to perform. But telling you that for subjects like chemistry, biology, history and all, the questions are repeated, and there are chances that this year also many questions are going to be repeated from your past 10 years board papers. So you have to study that carefully, you have to study that properly for your board examinations. और अगर आप बुक खोल के बुक से अगर आप रिविजन करना स्टार्ट करो, तो you will not be able to complete the preparation in 10 days, or you will not be able to complete the revision. तो अगर आप 10 years खोलो और वहां से सारे क्वेश्चंस अभी तक आपने जो भी पढ़ा है अगर उसे आप रिवाइज करो, then you will gain confidence and you will be able to perform better. आपने जो भी पढ़ा है आपको सब कुछ याद आने लगेगा. whatever you have studied and you have already forgotten, again आपको याद आने लगेगा, and you will also gain confidence. और आप जो भी 10 years से कवर कर रहे हो, that is the major part and that should be covered. वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अभी बुक से प्रिपरेशन करना और बुक से रिविजन करना स्टार्ट करो. तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ये जो 10 डेज है ये सारा वेस्ट हो जाएगा, सब
टाइम चला जाएगा एंड यू आर गोइंग टू रिग्रेट लेटर. सो व्हाट यू हैव टू डू, 10 years इज वेरी इफेक्टिव. यू हैव टू स्टडी फ्रॉम 10 years. अब मैथ्स, कितने लोग ये पूछ रहे हैं कि मैथ्स का रिविजन कैसे करें. सो टेलिंग यू दैट मैथ्स को मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना है. एंड टेलिंग यू दैट जीएसटी एंड एपीजीपी जो है वो न्यू चैप्टर्स है, तो आपको उसको बुक से प्रिपरेशन करना है. तो अब बुक से आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि एंटायर बुक यू विल बी एबल टू डू. जो एमएल अग्रवाल का बुक है आपका मैथ्स का, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल फॉर योर मैथमेटिक्स. तो आपको वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. जैसे कि सपोज आपने एक चैप्टर खोला, तो एक चैप्टर से आप A to Z सारा क्वेश्चन आपको नहीं करना है. आपको जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेम है, तो उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. उसके बाद एक या दो क्वेश्चन, उसके बाद सपोज कोई पार्ट है जो कि आप मैथ्स में कर रहे हो, तो वो पार्ट से आपको जितना भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है. जितना भी टाइप्स ऑफ सम्स है उसमें से सब एक एक क्वेश्चन आपको करना है. वैसे आपका रिवीजन आपका कंप्लीट हो सकता है, सिलेबस भी कंप्लीट हो सकता है. एंड इफ यू कंप्लीट योर रिवीजन, अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हो, देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो यही कुछ सारी चीज थी जो कि मैं आपको बताना चाहती थी फॉर योर प्रिपरेशंस एंड हाउ टू कंप्लीट योर प्रिपरेशंस इन द लास्ट 10 days that you have for your preparations for your board examinations. So friends, this was the video. That's all for today. And besides this, if you have any doubts or queries related to your board examinations, so you can write to us in the comment section. So this was the video. Thanks for watching this video. And if you like this video, then please do give the thumbs up button and subscribe our channel Mastermind.